Good morning, friends. My name is Anmol Jain, and I'll be teaching you artificial intelligence and machine learning. We'll only cover the introduction and the basics, though at the end, for the coders, we have a small regression model that we will use and we will make through the concept that we learn in this session. Let's begin the session. The session will be comprising of three phases. First is introduction to AI and ML. The second would be regression in machine learning. And the third, we will do problem solving, that is making simple regression model through Python. Even if you don't know what is Python and how it works, you need not know the codes. We will gradually grasp the concepts and we will go through it. Going on to artificial intelligence. What is exactly artificial intelligence? Artificial intelligence is a branch of computer science, as you can read in the PPT. What artificial intelligence deals with is making a machine that is capable of performing tasks that are usually done by humans. It is a reproduction or a clone to human intelligence. It is the endeavor to replicate or simulate human intelligence in machines. Right? Usage of artificial intelligence can be found in self-driving cars. There are even chess algorithms that prove and use artificial intelligence. Many theorems can be proved with the help of artificial intelligence. Also, let me give you an example from your real life, और जो कि बच्चों को ज़्यादा पसंद है, एलेक्सा. जी हाँ, एलेक्सा में जो एल्गोरिदम है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है. How artificial intelligence is used? AI is a computer system to able to perform tasks that are already ordinarily require human intelligence. Many of these tasks and systems are powered by machine learning. Some of them are powered by deep learning and some of them are powered by very boring things like rules. हर सब्जेक्ट और हर उसमें रूल्स तो ज़रूर आते हैं, बट और वो बोरिंग हो ही जाते हैं. आज देखते हैं हम कि कोशिश करेंगे कि आज का सेशन बोरिंग नहीं हो. ओके. प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं वो हाईली एक्यूरेट होते हैं. मतलब ऑलमोस्ट 95 या 95% से ज़्यादा की एक्यूरेसी होती है. दे हैव अ वेरी हाई स्पीड. I guess this point is repeated over here. I'll just remove it. It is very useful for risky areas. आप सोचिए कि कोई बॉम्ब डिटोनेटर की हमने मॉडल बनाया है एल्गोरिदम और उसको मशीनरी में इम्प्लांट किया है. हाउ यूजफुल वुड इट बी दैट जहाँ इंसानों को अभी जाके बॉम्ब डिटोनेट करना पड़ता है वहाँ पे सिंपली रोबोट्स could go and humans could supervise them from safer area. Okay. Then digital assistant, this is already in use and it is very much efficient. You have seen in many websites we have digital assistants, we have chatbots, isn't it? So that is very useful field in artificial intelligence. What are the disadvantages? अब कोई अच्छी चीज होती है तो उसके बुरा भी इफेक्ट होता ही है, especially with dealing with computers and at a such high level, and it is such a vast field. So इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है हाई कॉस्ट. जब आप मॉडल को बनाते हैं, और छोटा मोटा मॉडल नहीं, वो तो अगर आप जब 10,000 लाइन्स के कोड लिखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स बनाते हैं, फिर उसको मशीनरी में इम्प्लेंट करते हैं, तो इट टेक्स अ हाई कॉस्ट. ऑल्सो जब आप किसी चीज़ को कोड कर रहे हैं, आप खुद ही सोचिए, हाउ कैन अ कंप्यूटर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? उसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती. द थर्ड थिंग, एंड इट इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम विथ रोबोट्स. हमने कितनी सारी मूवीज देखी हैं जिसमें रोबोट्स विल टेक ओवर द वर्ल्ड एंड स्टफ. दैट कैन बी पॉसिबल बिकॉज robots and artificial intelligent machines have no feelings or emotions. This increases the dependency on machines. Hum, the future generations, and even we are more or less depending on machines.
whether earlier, we used to have all the things that we had to do in mind. Now we are using to-do list and various software. So artificial intelligence or any digital appliance definitely increases the dependency on machines. So at that point, we'll move to the next point. This diagram, this very direct diagram, shows the various, you know, streams or department in artificial intelligence. If we go for machine learning, we have deep learning, supervised and unsupervised learning. Though I hadn't planned to go in these topics, but let me tell you, deep learning is basically, having data sets and data, and then you deeply analyze them. You analyze, and then one example of deep learning can be the Turing machine, which is though proposed and hypothetical, but it is example of uh, deep learning. Supervised learning is when we make a model and the target output and the weights are already given. मतलब अगर हमने एक कुकी मेकिंग मशीन बनाई है फॉर एग्जांपल इन रियल वर्ल्ड, तो हम उसको पहले से ही बता दें कि जो फाइनल कुकी होगी वो कैसी होगी. तो इट गेट्स अ सुपरविजन, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. अनसुपरवाइज्ड में वही, वी डू नॉट प्रोवाइड द फाइनल target output, and we also do not provide the weights. The machine itself learns and tests, isn't it? Today we'll be making a simple model, so I'll be going to supervise machine learning. Okay, then there is natural language processing. Natural language processing में propositional logic, predicate logic, linear temporal logic. हाँ, there's a very nice problem, Wumpus puzzle, hunt the Wumpus. Search that on Google and you'll find it is very nice. And you know, this is the part where we are combining machine learning with language, like text generation, question answer. This is the part. Okay, expert systems, the high database user using, very large companies. These are the advisory ones: vision, image recognition, machine vision. This all is artificial intelligence, and comprising of all parts of this, we can make a simple machine, a machine that can walk, that can speak, that can see, that can analyze, that can, think. This machine learning is the thinking part, that can process. So that this is artificial intelligence in its core. Now let's see, where can we use artificial intelligence. By the very diagram you can see how many uses are there for artificial intelligence. It can be used in politics and government, even ballot machines. We can implement the, just have an idea, you may use it in future, that you can, have a processing unit for ballot machines that we use for voting in India, and we can just recognize if a person is doing it again or again or not. It would be a security. We can use them in events. We can, insurance companies, cyber security, smart homes. We are already using in defense. We are already using them. Social networks already, real estate, and there are many more sites and very many more uses of artificial intelligence. See, artificial intelligence has a very varied field. You cannot, just learn some point and you can start making models and machines. But I'll try my best that today's session would be some informative. Or I don't know if you guys are Hindi, like, or you prefer English, so I'll be talking in both the languages. मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में बात करूंगा और आपको समझाऊंगा. अब ये हमारा पहला फेज था जिसमें हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज होता है. ये मैंने सिर्फ एक sarcastic वे में दिया था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. एंड डेफिनेटली जो एडवांटेजेस हैं वो आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस को, पर फिर भी वी हैव टू नो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एनीथिंग वी यूज एंड वी ड्वेल इनटू. फिर हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्चुअल सिस्टम क्या है, व्हाट इज द पार्ट्स और द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फिर उसके यूजेस देखे. अब
हमारा जो सेकंड पार्ट था मॉड्यूल का, रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। तो रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग जानने से पहले वील गो ऑन टू लर्न व्हाट इज मशीन लर्निंग एक्चुअली। मशीन लर्निंग, it is a method where target goal is defined or undefined, defined or undefined. We also have machines where the target goal is undefined. You know, for example, अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं उनको देखिए, उनमें जो टारगेट आउटपुट है वी डोंट नो व्हाट इट इज, कि आप स्पेस में क्या ढूंढ रहे हो, वी नेवर नो, है ना। तो दैट इज an example of undefined machine learning, and it is a method where the target goal is defined or undefined, and the steps to reach the target is learned by machine learning itself by training and gaining experience. मशीन लर्निंग में मैं एक बात और बता दूं, देयर आर टू स्टेप्स। मैंने आपको बताया कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। फॉर एनी टाइप ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग यू नीड टू हैव सम लर्निंग मटेरियल, इजंट इट। हमें बुक्स लगती हैं, हम उनको पढ़ते हैं पहले मैथ्स की, फॉर एग्जाम्पल हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन, we'll go to the examples, हम कुछ examples करेंगे, then we our brain analyzes it and learns it, and then we do the newer questions or the questions which are unknown to us. Okay, so that is the same case in machine learning. मशीन लर्निंग में भी हम जो मशीन है, हम एल्गोरिदम बनाते हैं, हम उसको एक डेटा सेट देते हैं, डेटा बेस देते हैं। डेटा सेट मैंने इसलिए बोला कि आज हम जो मॉडल करेंगे उसमें हम एक छोटा सा डेटा सेट लेंगे और फिर यूज करेंगे। तो हम जब डेटा सेट या डेटा बेस लेते हैं तो हम उसका कुछ पार्ट डिवाइड कर देते हैं ट्रेनिंग के लिए, पढ़ने के लिए, और कुछ पार्ट डिवाइड कर देते हैं टेस्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आप एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिए, तो एक पार्ट रहेगा एक्सरसाइज का और एक पार्ट रहेगा एग्जाम्पल्स का। तो ऐसे वी यूज इट फॉर मशीन्स। ठीक है, तो मशीन लर्निंग प्रोसेस of getting machines to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. हम हार्ड कोडिंग कुछ भी नहीं करते, we only hard code the rules and procedure. उसके बाद we never tell them the values or the weights. What are weights? Weights are like आपको कुकी बनानी है तो what is the temperature? We never hard code it, isn't it? That is nice, right? मशीन लर्निंग एंड टेस्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। थ्योरी हमेशा बोरिंग लगती है, पर वी नो नीड टू नो द कंसेप्ट्स, द बेसिक्स। सो व्हाट मशीन लर्निंग, हमने एक एमएल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ओके। आई जस्ट starts from here, over here. This is the first point. We make an algorithm, okay, and as soon as we make an algorithm, we input data, जो मैंने आपको बोला था डेटा सेट्स, डेटा सेट्स, ये अनप्रोसेस्ड भी हो सकता है और प्रोसेस्ड भी हो सकता है। यूजुअली इट इज प्रोसेस्ड, अदरवाइज वी इंक्लूड अ प्रोसेसिंग स्टेप इन बिटवीन इट, लाइक हम यूजुअली एसपीएसएस या एक्सेल या फिर देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस डेटा, इजंट इट। ये यहाँ पे मेन पार्ट आता है डेटा एनालिस्ट का, वो उसको प्रोसेस करके एमएल एल्गोरिदम के लिए प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे एक एल्गोरिदम तैयार हुआ, हमने उस एल्गोरिदम में ट्रेनिंग डेटा डाला, जो ट्रेनिंग डेटा और डेटा इनपुट्स हमने डाले, फिर एक मॉडल तैयार हुआ, मॉडल से एमएल एल्गोरिदम तैयार हुआ, ये यहाँ तक स्टेप्स पहुंचे। अब वो मॉडल काम करेगा, काम करेगा तो पहले क्या करेगा, ट्रेनिंग तो हो गई उसकी, अब टेस्टिंग करेगा। तो टेस्टिंग करेगा, फिर उसका या तो आंसर करेक्ट आएगा तो वो सक्सेसफुल मॉडल हो गया, और गलत आया तो वो फिर से। तो ये जो ये लूप बन रहा है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये लूप, this is called the feedback loop. What is feedback loop? Feedback loop में क्या होता है, जितने भी जो भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती है मशीन लर्निंग में, तो उसको हम एनालाइज करते हैं और हम उसको फिर से चेंजेस लाते हैं।
ऐसे चेंजेस जिससे कि जो भी प्रॉब्लम हुई थी पहले वो ठीक हो जाए। तो ये फीडबैक लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये फिर से एमएल एल्गोरिदम ट्रेन होता है, फिर हम दूसरे इनपुट्स लेते हैं, फिर दूसरा ट्रेनिंग डेटा सेट लेते हैं, तो जब तक अराउंड 95% हमारी वो नहीं आ जाती है क्रेडिबिलिटी सक्सेसफुल, तब तक मॉडल नहीं माना जाता। तो ऐसे हम लोग फीडबैक लूप का यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना सिंपल लगता है पर जब आप करने के लिए बैठो तब आपको बिल्कुल आएगा भी नहीं समझ में, इसलिए। अब हम आ गए थर्ड पार्ट पे, रिग्रेशन एनालिसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिग्रेशन एनालिसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने एक डेटा सेट लिया, ठीक है? फिर मान लो जैसे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल एक कार है, वी नो इट्स प्राइस, हमने सब कुछ, हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है? एक कार है, मान लो उस अभी एक मैं बिल्कुल सिंपल लेता हूँ, तो उसके लिए उसका पेट्रोल कंजम्पशन जो है, पेट्रोल वाली कार है, डीजल नहीं है, तो पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो है 3 लीटर्स पर किलोमीटर। हाँ, इट्स हाई, जस्ट इट्स हाइपोथेटिकल, ओके। 3 लीटर्स पर किलोमीटर, ठीक है? तो उसका माइलेज हमें पता चला, माइलेज उसका हमें पता चला कि उसका माइलेज 3 लीटर्स पर किलोमीटर है, ठीक है? तो जब हमें इसकी टायर विड्थ पता है, हमें इसके बाकी सारे वेरिएबल्स पता हैं, कि हमें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है कि इसकी कि कितने यू नो कितनी मोटर्स हैं, कितनी चीज़ें यूज़ होती है, कितना एनर्जी कंजप्शन। अब किसी ने बोला कितने एक्सेल्स हैं, मान लो ये 4 एक्सेल वाली कार है, हमारी कंपनी ने सोचा कि व्हाई डोंट वी प्रोड्यूस अ कार विद 6 एक्सेल, पर उसको मार्केट में उतारने से पहले वी नीड टू नो व्हाट इज द माइलेज। अगर माइलेज अच्छा नहीं हुआ एंड वी प्रोड्यूस द मशीन एंड हमने पूरी कार बना ली, वी हैव प्रोड्यूस ऑल द थिंग, वी हैव launched it into the market, we have done all the research work, or if the machine fails then it would be very much loss, है ना? पैसों का भी लॉस होगा एंड कंपनी को बहुत लॉस होगा। तो क्या करेंगे, उनके पास आइडिया क्या है कि वो रिग्रेशन एनालिसिस करें, वो प्रिडिक्ट करें कि अगर अगली वाली मशीन जो कार बना रहे हैं उसका कार का टायर की लेंथ इतनी है, एक्सेल्स 3 है, इंजन कैसा है, ये सब यूज करके प्रिडिक्ट करें। तो अब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें, जो हमें पहले से, हाँ, ये माइलेज। माइलेज किस पे डिपेंड करेगा, टायर की विड्थ पे, और कितने शेल्स का इंजन है, कितनी मोटर्स लगी हैं उस पे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि हो गया टायर की लेंथ, टायर की विड्थ, और रबर क्वालिटी, ग्रिप, एवरीथिंग एल्स, है ना? तो ये दोनों वेरिएबल्स को हम एनालाइज करते हैं और हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या चेंज लाएंगे बेसिकली। तो रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल based on the value of at least one independent variable. It explains the impact of changes in an independent variable on dependent variable. जो भी impact होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, उस पे जो चेंज होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होता है, तो वो जान। डिजाइनिंग अ सिंपल रिग्रेशन मॉडल। कंडीशंस क्या रहेंगी हमारी, एक इंडिपेंडेंट रखेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपल रखना है एक्स। जैसे आपने इक्वेशन देखी होगी, लीनियर इक्वेशन, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वही है। एम इसमें क्या है, बीटा 1, पॉपुलेशन स्लो जो कि कहते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और पॉपुलेशन y का इंटरसेप्ट, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू रहती। और हम कुछ रैंडम एरर मान के चलते कि कुछ तो एरर आएगी, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जो आज मैंने डेटा सेट लिया है, लेट्स सी द डेटा सेट। उसमें हमने क्या दिया है, आवर्स एंड स्कोर्स लिए। तो आवर्स एंड स्कोर्स में हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर बच्चा 2 घंटे पढ़ता है तो उसका इतना स्कोर आता है। अगर जैसे किसी ने 2.5 आवर्स पढ़ा तो उसका 21 आए स्कोर्स। हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर उसने 5 आवर्स पढ़ा तो व्हाट विल बी हिज स्कोर।
तो अब हम हाँ देखते हैं कि इसमें कितना ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो हम इसके लिए कुछ 26 सेल तक हमारे पास डेटा है, तो हम इसका कुछ पार्ट ट्रेनिंग के लिए रखेंगे और कुछ पार्ट टेस्टिंग के लिए, इजंट इट? तो अब देखते हैं। तो हमारी कंडीशंस क्या है, अगर हम सिंपल रिग्रेशन मॉडल डिफाइन कर रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिस्क्राइब्ड इन अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है ना। चेंजेस इन वाई आर अज्यूम टू बी कॉज्ड बाय चेंजेस इन एक्स। ऐसा नहीं है कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मम्मी बना रही है किचन में मैंगो शेक और यहाँ पे मैं लैपटॉप चला रहा हूँ। डज माई वर्किंग ऑन लैपटॉप चेंजेस मम्मी का मैंगो शेक बनाना? नहीं ना। तो इट इज नॉन रिलेटेड, को रिलेटेड है ही नहीं ये दोनों सिचुएशन। तो ये एक और कंडीशन होती है कि चेंजेस इन वाई आर अज्यूम टू बी कॉज बाय चेंजेस इन एक्स। मतलब ऐसा कुछ हमें वाई अज्यूम करना है, जैसे कि एडिंग शुगर या फिर अर्थक्वेक जो कि अफेक्ट करेगा मम्मी के मिल्क शेक बनाने को। ओके, लेट्स सी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कितने टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। जैसे हम यहाँ देखें तो सब पास पास है, ज़्यादा नहीं है। ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड अ रिग्रेशन लाइन। तो अगर एक्स आगे बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू से वाई की वैल्यू इफेक्ट हो रही है, ये बिल्कुल क्लोज लिंक्ड है, को रिलेशन बहुत ज़्यादा है। वीक रिलेशनशिप में दीज आर वेरी फार एंड वी टेक द एवरेज वैल्यूज ऑफ दिस। हम इसको लाइन से अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल आई टेल यू, ये जो लाइंस हैं, रिग्रेशन कैसे करता है मशीन, वो मैं बता रहा हूँ। जो लाइंस हैं ऊपर, हाँ जो लाइन के ऊपर वाली लाइंस का पाथ डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू और मोर और लेस सिमिलर टू द नीचे वाली लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Okay, this is how our regression problem works. Okay, then no relationship. Second type of relationship would be no relationship. जैसे x बढ़े कम हो उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट है y। देखा आपने, कांस्टेंट लाइन है, y इक्वल टू c करके कुछ लाइन होगी इसमें। तो x का कुछ रिलेशनशिप ही नहीं है, को रिलेशन ही नहीं है। फिर दो टाइप के, लीनियर रिलेशनशिप्स एंड कर्वी लीनियर रिलेशनशिप्स। आज हम लीनियर रिलेशनशिप पे एक मॉडल बनाएंगे। और कर्वी लीनियर रिलेशनशिप मतलब लॉगरिथमिक, उसमें फॉर्मूलेज यूज होते हैं मैथ्स के। इसलिए मैंने सोचा कि इफ वी मेक अनदर सेशन आई विल टेल यू इन दैट। और उसके लिए आपको थोड़ी और कोडिंग की भी ज़रूरत है। ओके, सो वील मूव फॉरवर्ड एंड फाइनली वी आर ऑन टू कोडिंग। कोडिंग के लिए आई बी यूजिंग पाइथन 3 लैंग्वेज। आई बी यूजिंग जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक के लिए आपको एक एनाकोंडा करके सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। एनाकोंडा सॉफ्टवेयर, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं एनाकोंडा पे कोड करता हूँ। इट इज नॉट अ कोडिंग डिवाइस, इट इज अ बंच ऑफ सॉफ्टवेयर। इट कलेक्ट्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक पाइथन 3 के लिए आपके पास जुपिटर नोटबुक है, नमपाई है, आर स्टूडियो है ना, पांडाज है। it has very many, so many, you know, softwares to for coding। तो मैंने यहाँ पे लिंक, मैंने डेटा सेट की भी लिंक डाली है। एक गूगल ड्राइव पे रेपोजिटरी बनाई है मैंने, उस पर आपको सारे डेटा सेट्स की लिंक, एनाकोंडा सर्वर कहाँ से, सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है उसकी लिंक, और हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा उसके लिए भी एक वीडियो लिंक मैंने डाली है। दिस विल बी, मैं नीचे आपको ये सब पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो विल